नित्यानन्देश्वरसमारम्भां नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Sri Mahants, Mahants, Kotaris, Tanedars are sitting with us all over the world at this time through Nityananda TV, Lotus News Channel, Sadhana TV, Janashri TV, Ishwar TV, and through two-way video conferencing, having Nayanadiksha in 36 cities in many countries around the world. Cities sitting with us in two-way video conferencing, Nityananda Gurukul Biddi, Kuala Lumpur Palani, Hyderabad Gupta Kashi, Dubai Vaidyanatham, New York Varanasi, Bangalore Kasturi Nagar, Sun Prairie Wisconsin, Guadalupe Rameshwaram, Tuen Mun Hong Kong, Ahmedabad Gujarat, London Kashi, Indrani New Jersey, San Antonio Texas, Coimbatore Dhyanapitham, Ohio Prayag, Nityananda Nagaramu Hyderabad, Toronto Kailasam, San Jose Madurai Oklahoma Somanatham, Nityananda Nagara Biddi, Kalpataru Annanagar Chennai, Ohio Ma Shivananda Los Angeles Arunachalam, Charlotte Srisailam Hollywood, Seattle Chidambaram Toronto Kailasam, Oman Sivagangai, Devon UK, Hyderabad Gupta Kashi, Dakota Dunes, Jorpati Nepal, Coimbatore Dhyanapitham, Miami, Dubai Vaidyanatham, Houston Kalahasti. I welcome all of you with my love and blessings. Today I wanted to continue to expand on some of the important tips about completion with others. Please understand the science of completion with others. Yesterday I was expanding and I was explaining the necessity for completion from the angle of social stability, from the angle of Hinduism. And as a spiritual truth. Today I wanted to explain step by step how the completion helps your spiritual growth. Please understand, only when you understand how this completion helps your spiritual growth, step by step, inch by inch, you will be able to practice this as a spiritual practice. I wanted every Gurukul kid, from now onwards I will not call my Gurukul kids as Gurukul kid, I will start calling them as Balasants, the Balasanyasis. So from today, I give you guys the title of Balasanyasis, Balasans. So all the students who are studying in our Gurukul, I will call you guys as Balasans and Balasanyasis.
the Bala Sannyasis of our Gurukul and Krama Brahmacharis, Naishtika Brahmacharis and Sannyasis and devotees, disciples, please understand. Listen step by step how this completion helps you. How this completion leads you to be more and more in the powerful space. One, how much ever I explain, if you do it, you will understand the experience, how the completion makes you so joyful, powerful. You will understand that. That is first. Second, even philosophically, you need to understand the power of completion. Please listen. Anything in the outer world which makes you powerless, it can be as simple as gulab jamun, as simple as gulab jamun, or as complicated as extramarital affair. It can be as simple as a gulab jamun or as complicated as extramarital affair. Anything which makes you powerless brings karma. And I wanted to welcome Swami Atmananda Ji Maharaj, who is a Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akada. Swamiji, please be seated. Welcome. We are honored and delighted to have amongst us today Mahamandaleshwar Swami Shri 1008 Atmananda Ji Maharaj. He is a Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akada, and he is also Acharya, who are very few Mahamandaleshwars are Acharya who has capability of teaching. He is also the head of Swata Prakash Ashram. Swamiji has ashrams in Haridwar, Punjab, Gujarat and Madhya Pradesh, and he is continuously engaged in spiritual activities and teaching Hinduism and Sanatana Dharma and enrich people. Today we are honored to have Swamiji amongst us, and we all welcome Swamiji for being here. On behalf of me and on behalf of Jnanapeetham, I welcome Swamiji for gracing us. And Swamiji is also, if I have to add one more line, the personal touch. Swamiji strongly stood by us and supported us during all the controversy, conflict, debate anywhere happens about us. And I request Swamiji to bless us and grace us. Harihi Om. Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Yadbhadram Tanyasuva Om Shanti 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 Om.
परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्री नित्यानंद ध्यान पीठम के संस्थापक एवं इससे संबंधित समस्त विश्व में फैली हुई स्वामी जी के इस संस्था की शाखाएं के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, हमारे बड़े ही अभिन्न स्वामी जी के परम शिष्य स्वामी तुरायानंद जी महाराज, इस संस्था के समस्त हमारे महापुरुष वृंद, संत वृंद और विश्व भर से पधारे हुए प्रिय सज्जनों और स्नेहवती माताओं, श्रद्धेय स्वामी जी के बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे, कुंभ में भी देखे, टीवी में भी देखे। आज पूरे विश्व में सारा जगत बड़ा भयभीत है, अशांत है, आक्रांत है और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पीस ऑफ माइंड, मुझे शांति मिले। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण के लिए सारे समस्त जगत को जो शांति प्रदान कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ स्वामी जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हम लोग सब भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के अनुयायी हैं। भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस जगत में 3 वस्तुएं बहुत ही दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयम एवेतत् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले जगत में अगर कोई वस्तु दुर्लभ है तो वह है मनुष्यत्व। आज लोग कहते हैं कि मनुष्य तो बहुत हैं, भारत में तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य तो हम बहुत देखते हैं पर मनुष्यत्व नहीं दिखाई देता। हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं मानव तो बहुत दिखते हैं पर मानवता नहीं दिखाई देती। मनुष्य होना अलग बात है और मनुष्यत्व प्राप्त करना वो अलग बात है। मनुष्य तो बहुत हैं पर मनुष्यत्व की प्राप्ति महापुरुषों के सानिध्य में मिलती है, महापुरुषों की शरण में मिलती है। ये इसलिए मनुष्यत्व प्राप्त करें। और दूसरी वस्तु है मनुष्यत्व के साथ साथ मोक्षत्व की प्राप्ति, मुमुक्षत्व। हमारे यहाँ कहते हैं कि दुनिया में समस्त जगत में अगर कोई विचार करने वाले प्रश्न हैं, आज पूरी दुनिया की जितनी भी फिलॉसफी है, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी है चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें 3 ही प्रश्न हैं कि ये जीव क्या है, जगत क्या है और जगत को बनाने वाला कौन है। 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले ये प्रश्न अपने बारे में है कि हम कौन, मैं कौन हूं। भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कभी ऐसा विचार करना चाहिए कि कोहम इदम जातम को वै कर्तस्य विद्यते, मैं कहाँ से आया हूं और क्यों आया हूं। मानो मुझे जो जन्म मिला है मनुष्य का,
वो जन्म क्यों मिला है? फिलॉसफी में कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। मान लीजिए कोई भी आप कर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है कि नहीं? यहाँ पर आप आए हैं स्वामी जी के पास, तो यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आए हैं, एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं, एक कारण है ना। तो प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण है। तो हम सबको जो जन्म मिला है उसका भी कोई कारण होगा। अच्छा देखिए, अगर हम कहें भी बिना कारण कुछ है नहीं, तो बिना कारण कुछ भी नहीं है जगत में। अगर आप बिना कारण हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई पागल हो गया है क्या, और बिना कारण रोएंगे तब भी कहेंगे कि भाई पागल है क्या। कारण है ना एक। तो हमको अगर जन्म मिला है तो कोई कारण तो जरूर होगा। तो सबसे पहले हमको वो विचार करना है कि हम क्यों जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे जन्म का उद्देश्य क्या, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है। वो अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ही इच्छा होती है कि सुखम में भूयात दुखम में मां अभूत। समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य की बात छोड़िए, पशु भी एक ही वस्तु चाहता है कि मुझे सुख मिले। कहीं से भी मिले, किसी वस्तु से मिले, किसी भोग से मिले, किसी पदार्थ से मिले। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन में सुख आए, मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले। आनंद चाहते कि नहीं? देखो हम हमारे जो परंपरा है, हमारे गुरु लोग कितने महान थे। हम सब संतों के पीछे आनंद ही आनंद है। स्वामी आत्मानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी तुरानंद, सब आनंद ही आनंद है। देखो कुछ है ही नहीं हमारे पास, आनंद ही आनंद है। ये आनंद आप लेने आते हैं कि नहीं? हमारे श्रद्धेय स्वामी जी के पास आप आते हैं तो क्या कहेंगे? हम आनंद लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? आनंद लेने। इसीलिए तो आते हैं क्योंकि आपको स्वामी जी से आनंद मिलता है। तो वो जो आनंद आप चाहते हैं, वो आनंद अगर हम दुनिया में देखें तो कहीं मिलेगा क्या हमको? टेम्परेरी तो मिल सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं क्षणिक सुख, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं, हम रसगुल्ला खाते हैं, है ना। आप जैसे कहेंगे इडली डोसा खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है महाराज, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो कितना खाएंगे? थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, बाद में फिर भूल जाते हैं, क्योंकि क्षणिक है। जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भोग, प्रत्येक पदार्थ जो हमें मिल रहा है वो केवल क्षणिक है। और हम चाहते हैं ऐसा आनंद जो हमेशा रहे, जो हमें हरिद्वार में भी मिले, हमें बेंगलोर में भी मिले, हमें विदेश में भी मिले, हमें विदेश में भी मिले। समस्त जगत में जहाँ जहाँ हम जाएं वो आनंद हमारे साथ रहे। वो आनंद अगर हम चाहते हैं तो उस आनंद का नाम ही परमात्मा है, उस आनंद का नाम ही ईश्वर है। हम उसको ईश्वर कह देते हैं, वही आनंद है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मेरे से एक दिन प्रश्न किया कि महाराज आप लोग ईश्वर की चर्चा करते हो, परमात्मा की चर्चा करते हो, हम तो समझते हैं कि ये परमात्मा है ही नहीं, तो ये जो आप कहते हो जगत परमात्मा ने बनाया, हम कहते हैं जगत परमात्मा ने नहीं बनाया, ये तो नेचुरल है। क्या है? जैसे हम सीधी भाषा में बोलते हैं प्राकृतिक है। आजकल एक लोगों ने वर्ड पकड़ रखा, कोई भी बात ये तो नेचुरल है, ऐसा बोलते हैं ना। एक बड़े ही वकील बुद्धिमान थे और एडवोकेट थे वो। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी, बड़ी आस्तिक थी। प्रत्येक दिन परमात्मा की अर्चना, पूजा, ध्यान, स्तुति, स्तवन बड़ा उसको अच्छा लगता था। तो उसके पति थे एडवोकेट। एडवोकेट तो भाई वकील होते हैं, वो तो तर्क करने वाले होते हैं। तो उसके पति ने उससे कहना, अरे क्या तू रोज पाठ पूजा करती है, क्या तू ध्यान करती है, क्या मिलता है? तो उसने कहना, देखो ऐसा मत कहो, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मुझे बड़े
संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फाई मैं हो जाती हूँ, इससे आनंद मिलता है अंदर, पीस ऑफ माइंड। और फिर ईश्वर की तो आराधना करनी चाहिए। तो उसने कहा कौन ईश्वर? बोले वो ईश्वर जिसने जगत बनाया है। वो बहुत अच्छे सत्संग करने वाले थे। बोले तुमने ईश्वर को देखा है? उसने कहा कि ईश्वर को देखा तो नहीं, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ। कैसे? बोले देखो, एक माँ का स्तन है और माँ के पेट में बच्चा है। बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ तो माँ के स्तन में रक्त है, खून है, और बच्चे का जन्म होते ही वो खून दूध में ट्रांसफर हो गया, परिवर्तित हो गया। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ब्लड का दूध बना सकता है? ईश्वर ही बना सकता है, परमात्मा ही बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। उसने कहा नहीं, ये तुम गलत कहते हो, ये सब तो नेचुरल हो रहा है। देख, नेचुरल ही अपने आप नाखून बड़े होते हैं, बाल अपने आप बड़े हो जाते हैं, सब नेचुरली तो है, कोई ईश्वर नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, अभी तुम अपनी सोच है, तुम्हारी हमारी अपनी सोच है। कुछ समय बाद उसका बेटा बड़ा हुआ। बेटे के अंदर माँ के संस्कार आए, क्योंकि संस्कार तो भाई सबसे पहले जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य में, कि ये जो संस्कार व्यक्ति के अंदर आते हैं ये सबसे पहले तो पूर्व जन्मों से आते हैं। कई महापुरुष दिव्य आत्मा होती है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ना जाने कितने जन्मों की तपस्या है जो इस रूप में आपको मिले, सदगुरु के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले। ये संस्कार जो हैं पूर्व जन्मों से आते हैं। कुछ संस्कार माता पिता से मिलते हैं, पेरेंट्स देते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, वो संस्कार देते हैं। पर सबसे अधिक संस्कार व्यक्ति को संघ से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, तभी आपके अंदर सद्गुण आएंगे। तो संस्कार की बात है। अब बच्चा है, उसके अंदर माँ के संस्कार आ गए। बड़ा होने पर उसने सोचा कि पिताजी को नास्तिक से आस्तिक बनाना होगा। तो उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाई, ड्राइंग किया, एक चित्र बना के उसने पिताजी के टेबल पर रख दिया। शाम के समय जब वो एडवोकेट घर आए, उन्होंने वो पिक्चर देखी, तस्वीर चित्र देखा, बेटे को बुलाकर कहा बेटा वंडरफुल, तुमने बहुत अच्छा ये चित्र बनाया, बहुत सुंदर। उसने कहा पिताजी मैंने नहीं बनाया। बोले फिर किसने बनाया? बोले ये तो नेचुरल है। अरे बोले नेचुरल कैसे? बोले पिताजी आप जब कहते हैं कि नाखून अपने आप बड़े हो जाते हैं, बाल अपने आप बड़े हो जाते हैं, सब नेचुरल हो रहा है, तो चित्र भी नेचुरल बन सकता है। अपने आप कहीं से चार्ट पेपर उड़ के आया, कहीं से पेंसिल आई, पेंसिल से रेखांकित हो गया, उसमें कलर भर दिए, सब अपने आप बन गया। तो उसने कहा नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हो मेरे को, बिना चित्रकार के चित्र कभी नहीं बन सकता। उस एडवोकेट ने बेटे से कहा बेटा चित्र को बनाने के लिए कोई ना कोई चित्रकार चाहिए, पेंटिंग को बनाने के लिए कोई पेंटर चाहिए। बोले ठीक है पिताजी, जब आप इतनी बात जानते हैं कि छोटे से चित्र को बनाने के लिए एक चित्र की आवश्यकता होती है, तो इतने बड़े जगत को बनाने वाला भी तो कोई महान चित्रकार होगा, जिसको मम्मी ईश्वर कहती है, परमात्मा कहती है, वही तो परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? हम सब का मूल वही है। देखो आप लोग यहाँ गंगा जी का दर्शन करते हो ना, ये गंगा जी है। ये गंगा जी गोमुख से निकली है, गंगोत्री से। लेकिन इसको शांति कहाँ मिलती है? जब सागर में लीन हो जाती है। कोई भी नदी है, हम सब छोटे छोटे नदी के स्रोतों की भांति हैं। जब तक परमात्मा रूपी सागर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमको चरेवती 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 चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, चलते रहेंगे। ये गंगा है, ये पाप को दूर करती है। हम कई बार कहते हैं, कई लोग आते हैं गंगा से क्या मिलेगा? गंगा से क्या मिलता होगा? गंगा हमारे पाप को दूर करती है। लंदन में एक नदी है, टेम्स नदी। एक बार हम लोग घूम रहे थे, एक छोटे से बच्चे ने मुझे कहा स्वामी जी, मैंने कहा पानी छू कर देखें इसका, टच करके। बोला डोंट टच स्वामी जी, टच मत करना इसको। मैंने कहा क्यों? बोले इन्फेक्शन हो जाएगी। तो मैंने कहा इन्फेक्शन क्यों हो जाएगी? अब वो छोटा बच्चा था, उसके पापा ने उसको डरा रखा था कहीं अंदर ना जाए, तो इसलिए कहा बेटा छूना मत, इन्फेक्शन हो जाएगी। पीछे केमिकल इसमें मिलके आता है, फैक्ट्रियों का पानी, इसलिए इसमें इन्फेक्शन हो जाती है।
तो उस बच्चे से मैंने कहा, बेटा तुम जानते हो हरिद्वार गंगा है? बोला हाँ हाँ, मैं मम्मी पापा के साथ गया था, खूब गंगा जी में नहाया था, बहुत अच्छा लगा था, बड़ा एंजॉय किया था। तो मैंने उसको कहा, देख बेटा तुम जानते हो गंगा जी को टच करने से, उसमें बात स्नान करने से क्या होता है? बोले क्या होता है? मैंने कहा इन्फेक्शन दूर होती है। ये यहाँ की नदी इन्फेक्शन पैदा करती है, तो हमारे भारत की गंगा इन्फेक्शन दूर कर देती है। देखो कितनी महान गंगा। हम कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, माँ तेरे दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, तो स्नान से कितना बड़ा फल होगा। कल मुझे बता रहे थे स्वामी जी आपको गंगा किनारे ध्यान के लिए ले जाते हैं। देखो कितने भाग्यशाली हैं, गंगा जी का तट हो और ऐसे आपके सदगुरु का संग हो, तो फिर कल्याण में कोई देरी हो सकती है क्या? इसलिए दूसरा जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि हमें मोक्षत्व की प्राप्ति करनी है, अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तब तक हमें वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो आनंद हम चाहते हैं। अब वो मिलेगा कहाँ से? तो तीसरा दुर्लभ वस्तु शंकराचार्य जी ने कहा, महापुरुष संश्रयः, ये संतों का सदगुरु का संग, ये सबसे दुर्लभ है। देखो दुनिया में लोग कहते हैं सबसे कीमती चीज आज हमारे पास कोई है तो वो टाइम है, समय है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। समय की सबसे ज़्यादा कीमत है, क्योंकि जो समय बीत गया वो फिर से नहीं मिलता। जो कल बीत गया सो बीत गया। अब आगे हमारे पास कितना है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो बीत गया वो तो बीत गया। अब वो जो समय है वो समय हमारे सामने है। अब उस समय का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये हमारे हाथ में है। जैसे मान लीजिए एक डाकू के हाथ में भी छुरा होता है और डॉक्टर के हाथ में भी औजार होता है, छुरा होता है। एक तो किसी का प्राण ले लेता है और दूसरा किसी के प्राण बचा लेता है। ऐसे ही व्यक्ति कोई ऐसा है जो समय का दुरुपयोग करता है, दुनिया में जगत में बिता देता है, और कोई भाग्यवान होता है जो समय का सदुपयोग करता है, ऐसे संत महापुरुषों की शरण में आता है, उनके सानिध्य में आता है, तो वो कल्याण का भागी है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्वज थे महाराजा यदु, वो एक बार वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे वन में। वन में घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा, एक बड़े महान संत एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे स्वामी जी के मैंने देखा है आश्रम में, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ है कल्पतरु, बहुत सुंदर। एक तो कल्प वृक्ष है ना, कल्पतरु भाई देवलोक में, एक देवलोक में भी कल्प वृक्ष है। और उसके बारे में आपको हम बताएं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुण्यों से देवलोक पहुंचता है तो उसको कल्प वृक्ष के नीचे जब बैठने को मिलता है तो कल्पतरु के नीचे बैठते उसकी जो भी कामना होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे वहाँ बैठ के उसने मन में कल्पना की कि मुझे बढ़िया बढ़िया इडली डोसा खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो फिर कहीं दुकान में जाने की जरूरत नहीं, तुरंत थाली लगी लगाई वहाँ आ जाएगी, क्योंकि कामना पूरी करता है ना कल्पतरु। जो भी कामना है वो पूरी हो जाती है। एक बार तो कोई बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था, वो चला गया और कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, तो उसने सोचा भूख लगी है, कुछ खाने को बढ़िया भोजन मिल जाए, तो भोजन की थाली लग गई। खाने पीने के बाद उसने सोचा अब तो नींद आ रही है, अच्छा सा बेड लग जाए, तो बेड भी मिल गया, सो गया। अब बेड मिला तो उसने बाद में सोचा कि यहाँ तो बड़ा अच्छा है, कल्पतरु है, जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल रही है। तो उसने विचार किया कि ये तो देवलोक है, तो यहाँ अप्सराएं भी होंगी, तो अप्सराएं भी होगी सेवा के लिए। अचानक उसके मन में आया कि अगर ऐसे में मेरी वाइफ देख ले तो वो क्या हाल करेगी मेरी। तो वाइफ भी आ गई और उसके हाथ में बेलना भी आ गया, अब लगी उसको मारने। और बेचारा आगे आगे और पीछे पीछे वो पत्नी उसकी। तो सामने से नारद जी आ गए। नारद जी तो संत हैं। अब देखो, जब कोई व्यक्ति उसको लगता है अब कोई रास्ता नहीं, तो वो संत की शरण में जाता है। संत तो मार्गदर्शक है ना, अध्यात्म जगत के गाइड करने वाले महापुरुष होते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज सारे जगत को गाइड कर रहे हैं अध्यात्म का,
तो ये भी तो संत मार्गदर्शक है ना। तो नारद जी भी संत हैं, तो उसने जाकर चरण पकड़े, महाराज गुरुदेव आप मुझे रास्ता दिखाओ, देखो ये पीछे मेरी आफत आ रही है, पत्नी मारती हुई। तो उन्होंने कहा ये बता हुआ क्या? तो उसने कहा कल्पतरु के नीचे बैठा तो ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा अरे भाई व्यक्ति, कम से कम कल्पतरु के नीचे बैठ के तो अच्छी कल्पना कर, वहाँ ऐसी कल्पना तूने क्यों की? तो देखो भाई, ये कल्पतरु तो कल्पतरु है, और स्वामी जी के आश्रम में भी कल्पतरु है, और मैं कहूँगा कि भगवान ऐसी कृपा करे कि स्वामी जी का जी आश्रम में कल्पतरु है, आप सबकी वो कामना पूरी करे, सबकी कल्पना पूरी करे। तो इस जगत में भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारी अध्यात्म विद्या का तो कोई कमी नहीं है जगत में, जितना आप कहोगे उतना बढ़ते जाएगा। संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो तो एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं, एक रास्ता दिखाने वाले हैं। मार्ग मिल गया तो बस समझ लो कल्याण हो गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है समय भी ज़्यादा हो गया, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज यहाँ हमें बुलाया, और मैं हृदय से स्वामी जी का आभार करता हूँ कि स्वामी जी इतने लोगों को इतना ज्ञान और ध्यान के, इतनी जगत में पूरी शिक्षा देते हैं। ऐसे महापुरुषों की आज आवश्यकता है। हमारे यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं कि जगत में अगर कोई संत, कोई महापुरुष, जिन संत के चरणों की धूली मिल जाए, जैसे हमने आपको कहा कि यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा, जैसे स्वामी जी यहाँ सामने बैठे हैं आपके, ऐसे बैठे थे। उस राजा ने देखते ही कहा कि महाराज आप इतने आनंद में बैठे हैं, इतनी प्रसन्नता में बैठे हैं, और मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो बोले क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ है, अखंड भूपति हूँ, पर फिर भी पीस ऑफ माइंड नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। तो कारण क्या? तो दत्तात्रेय जी ने कहा कारण ये है कि जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। तो उसने कहा आप तो वही महात्मा हैं, एक वस्त्र आपने पहना है, माला पहनी है, और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। जो संतों के पास तो वही यही होता है, माला होती है, या भगवा वस्त्र होता है। माल तो आप लोगों के पास ही है ना, संतों के पास तो माला ही है भाई। तो उन्होंने कहा, बोले देखो राजन, मेरी जो संपत्ति है वो भौतिक नहीं है, मेरी संपत्ति मेरे भीतर है, वो है आध्यात्मिक संपत्ति। और जिसके पास वो आत्मज्ञान रूपी संपत्ति होती है, उसी के जीवन में आनंद होता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो आध्यात्म पूंजी, वो आत्मज्ञान की जो संपत्ति है, वो आज सारे जगत में बांट रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये स्वामी जी महाराज इसी प्रकार, जिस प्रकार ये यहाँ हरिद्वार में, हरिद्वार को देखो, हम आपको एक बात बताएं, हरिद्वार संतों की नगरी है, और ये आप पूरे जगत के अंदर अगर कहोगे ना भी, जैसे आप लोग देखो भी हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही पूरे जगत की अगर कोई आध्यात्मिक राजधानी है तो वो हरिद्वार है। ये हरिद्वार आध्यात्मिक राजधानी है। जो महापुरुष, जो संत हरिद्वार से जुड़ गया, समझ लो पूरे जगत से जुड़ गया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। हमारे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सम्माननीय महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो इसलिए ये जिस नगरी में आप बैठे हो, ये पूरे विश्व की आध्यात्मिक नगरी है। और मैं यहाँ से आज यही संदेश दूंगा कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस अध्यात्म नगरी में जैसे बैठे हैं, इस अध्यात्म नगरी का ये जो संदेश आज यहाँ से मिल रहा है, यही संदेश पूरे जगत तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को यहीं अपने आभार प्रकट करते हुए अपने वचनामृत को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। So nice, Swamiji came and really blessed us and graced us. And on behalf of me and Jnanapeetham, Nityananda Sangha, all over the world, we thank Swamiji, Srimad Swami Atmanandji Maharaj, Mahamandaleshwar of Mahanirvani Peetha. We thank Swamiji, and I would like to request Turiyananda to give the translation. We thank Swamiji Atmanandji for enlightening us with such rich knowledge. I would just like to share the essence of what Swamiji has told us today. Maharaji is saying that today the world is afraid. Today the world is afraid because people don't have peace of mind. People have everything. There is so much materialism, but peace of mind is missing. So need of the hour is welfare of the world. Now how to do the welfare of the world?
So only saints can cause the welfare of the world, and that can be done by giving knowledge and peace to the world. Then Swamiji tells that Bhashyakara Shankaracharya ji tells that three things are really rare in today's world. Those three things are: first, Manushyattvam, means the birth in the human body. Second, Mumukshatvam, means the seeking, the nature of the seeker. And third thing, Sadguru Satsang, means getting a Sadguru. These three things are really rare. You can get everything else, but getting these three things is really rare and should be the aim of everybody. Swamiji says that every person should have these questions, that where have I come from and why I have come. This birth which I have got, why I have got this birth. So once person starts thinking on these lines, then he can come to the next stage of seeking. Philosopher also says there is a reason behind everything. Whatever we do, there has to be a reason behind that. So everybody is doing something for getting bliss, for getting ananda. That is what is the purpose of Manushya life or human life. The birth which we have taken, even if we laugh, there is a reason. If you laugh without a reason, people will think you are mad. So we should think that why we have taken the birth, and we should find out the reason for our birth. I want peace, I want bliss. The tradition we have, after every Swami's name, there is the word Ananda used. So we have come here to receive Ananda, and that is why all of us are here. Swamiji also gives examples that how God's existence is proven. When a lady becomes a mother, how the blood in the body gets converted into milk, that is not something which can happen on its own. So that clearly proves how the God is existing. So people who don't believe in the existence of God, for them, this is a very good example, scientific example. And that is how it is proven that God is there. So everybody who has come here has come for seeking. Swamiji goes on to tell that all of us are like small rivers. Like Ganga is a great river, but it gets peace only when it merges with the sea in Ganga Sagar. Same way, all of us are small streams of the divine, and we'll get peace and liberation only once we reach the ultimate source. Swamiji goes on to thank Nityananda Swamiji and telling devotees that all the devotees who are sitting in Haridwar are really blessed, because at this time in the city of Haridwar, in the presence of Ganga, people are getting all the three things. You have the human body, we have the seeking, and we have the satsang of the Sadguru. Swami Nityananda is present, who is a great incarnation and Sadguru, who is sharing the satsanga and knowledge with the world and doing great service to divinity. Atmananji Maharaj also goes on to share that how everybody's wishes get fulfilled by the divine tree Kalpataru in the divine loka. Same way, even in Swamiji's ashram in Bangalore, Bedidi, there is a banyan tree, Kalpavriksha. And Swamiji himself is fulfilling people's wishes. So anybody who wants to fulfill his wishes should come to Swamiji's satsang, and like a Kalpataru, Swamiji is continuously radiating bliss and fulfilling everybody's wishes. Swamiji then goes on and concludes the satsang by thanking Paramahamsa Nityananda Swamiji by saying how Swamiji is guiding the whole world from Haridwar. Haridwar is the spiritual capital of the world. So how the messages which Swamiji is giving in Haridwar should reach the entire world and enrich the entire world. It is his wish and also his desire that Swamiji's message should be taken to the entire world and maximum number of people should be benefited. Thank you. I bless you all. Let you all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching and causing eternal bliss. Nityananda. Thank you. Nityananda Dhyanapeetham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org, www.youtube.com/Life Bliss Foundation.